پارٹیوں کے پاس جانا ہے، سب پارٹیوں سے مدد لینی ہے۔ اب جب سب پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ بالکل آپریشن کیا جائے، پہلے یہ نہیں کہہ رہی تھی، اب جب کہہ رہی ہیں تو ہم نے آپریشن شروع کر دیا اور انشاءاللہ اس کے پازیٹیو رزلٹ بھی آئیں گے۔ تمام آپریشنز کے دوران کل 14 مشتبہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 79 مختلف قسم کے ہتھیار جو ہیں وہ بھی قبضے میں لیے گئے۔ ریڈز کیے گئے مختلف علاقوں میں، اس میں پرسنز جو کہ اریسٹ کیے گئے وہ 75، اس کو ہم کمبائن کر کے بتا رہے ہیں رینجرز اور پولیس کے۔ جب کراچی میں فوج گئی پارلیمنٹ کے تھرو گئی، ڈائریکٹلی کسی نے نہیں بھیجی کہ آرڈر کر دیا تو وہ چلی گئی۔ ہمیں فوجی آپریشن جو ہمارا موقف ہے حکومت پاکستان کا کہ یہ مسئلے کا عارضی حل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین، یہ عجیب اتفاق ہے یا اسے ہم اپنی بدقسمتی ہی سمجھیں ایک طرح سے کہ شہر اور دیگر ملک جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عجیب زیادتیوں کا شکار ہو رہا ہے۔ رسال پل بازار میں دھماکہ اور وہاں بہت سارے لوگ جو ہیں زخمی، 10 اور 12 کے قریب افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ کہیں دھماکے اور اسی طرح پچھلے جمعے کو مسجد میں دھماکہ نمازیوں پر، اور اس کے بعد شہر کراچی میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا حالت ہے۔ بہرحال حکومت نے ایک سٹیپ اٹھایا ہے آپریشن کا۔ آپریشن کس نوعیت کا ہو رہا ہے؟ سرجیکل آپریشن کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ہم تک آنے والی اطلاعات کے مطابق کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی میں بات نہیں کر رہی، عوامی نیشنل پارٹی بھی اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ اس میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہے اور انہوں نے رینجرز کو اور پولیس کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف گورنر صاحب تشریف لے جا چکے ہیں، آج صدر مملکت سے ان کی اہم ملاقات ہے۔ یہ ملاقات کل ہونی تھی لیکن یہ ہوئی اور آج ہوگی، جس میں طے پایا جائے گا کہ کیا معاملات ہوں گے اور وہ کون سی اسٹریٹجک بات چیت ہوگی جس میں کہ متحدہ قومی موومنٹ حکومت وقت میں واپس آ سکے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک کوئی ایسے کانکریٹ سٹیپس نہیں لیے جس سے کہ یہ واضح ہو سکے کہ وہ چاہتے ہیں، ول شو کرنا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم مل کر ان کے ساتھ چلے، جس میں کہ جیسے میں نے اس آپریشن کی طرف نشاندہی کرائی جس میں میڈیا پہ چرچے بہت ہو رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا نامی گرامی ٹارگٹ کلر یا دہشت گرد یا اس کے علاوہ شر پسند عناصر جنہیں آپ کہتے ہیں جو پیریفریز میں یا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک میڈیا پہ آئے ہوں کہ انہیں پکڑا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کو سامنے پیش کیا گیا، ان کے منہ پر نقاب تھا، جس کے بعد رحمان ملک صاحب نے خود یہ آرڈر دیے، میں نے سنے رات کے وقت کٹی پہاڑی پر جب وہ گئے کہ جی میں نے اب حکم دے دیا ہے کہ جو بھی پکڑا جائے گا اسے میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہرحال یہ حالات ہیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اپنے ایک وفد کے ساتھ کراچی میں موجود ہیں۔ بزنس کمیونٹی کے لیے انہوں نے آج ایک افطاری کا انتظام کیا تھا مقامی ہوٹل میں، وہاں جو ان کی بات چیت ہوئی اور جو بزنس کمیونٹی چلا کر کہہ رہی تھی اس پر بھی میں بات کروں گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک ایکسٹینسو پینل ہمیں جوائن کر رہا ہے، مجموعی صورتحال پر بات کریں گے کہ اس کے حل کیا ہے۔ یہ حل ہے سرجیکل آپریشن یا اس کے علاوہ بھی ایک دو قدم آگے بڑھ کر کچھ کرنا ہوگا؟ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔
वेलकम बैक नाजरीन। मैंने फेसबुक पे ऐसे ही क्वेश्चन ये लिखा था और लोगों का जो अभी तक मुझे रिस्पांस आया, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक कि कराची में जो ऑपरेशन है वो शैम ऑपरेशन है और इसमें कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आएगा और किसी भी टारगेटेड शख्सियात जिनके नाम पिछले दिनों मीडिया में चलते रहे हैं, जो कि हम सब जानते हैं वो कौन है, उनमें से किसी को भी पकड़ने की कोई हिदायत नहीं है। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक बहुत ही ऑनरेबल और सीनियर मेंबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर वजीर हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत है पीपल्स पार्टी की, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सैयद हैदर अली शाह साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और ANP के एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे, शहर कराची की सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। आप सब लोगों को मैं वेलकम करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी शाह साहब, ये फरमा दीजिएगा कि अवामी नेशनल पार्टी का उस दिन हाजी अदील साहब मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो नाराज़ हो गए और उठ के शो से चले गए। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें ना कॉन्फिडेंस में लिया है, ना हमें बताया है, और ये जो ऑपरेशन हो रहा है इस हवाले से, सर्जिकल ऑपरेशन, आपकी पार्टी के क्या तासुरात हैं? प्रोविंशियल लेवल पर तो मुझे पता है कुछ नाराजगी है, वफाकी लेवल पर आप इसे कैसे देखते हैं? देखो जी, हाजी अदील साहब हमारे सीनियर नायब सदर हैं पार्टी के। जब वो नाराज़ होते हैं तो मेरे ख्याल में वो तमाम पार्टी की तरफ से आवाज़ होती है, क्योंकि इस दफ़ा मुझे नहीं पता कि कराची के उस पर किसी को भी उसमें लिया है, एतमाद में लिया है। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि ये इस पूरे जो ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन का नाम देते हैं, कोई भी नाम देते हैं, इसमें कोई रबत नज़र नहीं आता। कभी पुलिस की तरफ से बयान आता है तो कभी रेंजर की तरफ से बयान आता है, लेकिन लोग देखना कंक्रीट रिजल्ट चाहते हैं कि जो लोग, जिन लोगों ने इतने लोगों को का खून किया है, इतने लोगों का खून बहाया ना हक, तो अभी तक कोई ऐसा आदमी पकड़ा नहीं गया, ना ऐसे आदमी पर हाथ डाला गया, ताकि लोगों को तसल्ली हो कि ऑपरेशन आगे चलकर कामयाब हो। हमारी तो दुआ यही है कि कराची में अमन हो, चाहे वो जिस तरीके से भी हो, लेकिन जो तरीक़ाकार अब अपनाया हुआ है, मुझे ज्यादा उम्मीद इससे नहीं है। जी, आपको ज्यादा उम्मीद नहीं है। मंजूर वसान साहब, सिंध के होम मिनिस्टर हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं क्योंकि वो बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी है। और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब भी हमें सुन सकते हैं, मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी, तमाम सीनियर लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर वसान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। वालेकुम सलाम जैस्मिन, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत है। मंजूर वसान साहब, मुझे ये पता है कि आपकी काविशें भी हैं और आपकी कोशिशें भी हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप होम मिनिस्टर हैं, लेकिन इससे मैं आपको इससे बहुत पहले से जानती हूं कि आप एक नफीस शख्सियत हैं और आपकी कोशिश बहुत है। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपकी राह में रुकावटें डाली जा रही हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है? क्या वजह है कि वो लिस्ट जो फराहम की गई है नेशनल असेंबली के फ्लोर पर भी, और आप लोगों के पास भी उन लिस्ट में नाम मौजूद है, उस किस्म की कोई गिरफ्तारियां नजर में नहीं आ रही बड़े पैमाने पर, जिसपे कि एतमाद हो सके पूरे शहर को कि वाकई आप क्रिमिनल्स पर हाथ डालने जा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट की विल है और ये हमने डिसीजन पहले ही ले लिया है कि हम जो भी ऐसे अनासर हैं जो कराची को अमन से नहीं देखना चाहते हैं और कराची में ऐसे हालात खराब पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन पे एक्शन लिया जाए। आप 2 दिन से आप देख रही हो कि हमारे फोर्सेस, पुलिस और रेंजर्स बिल्कुल स्ट्रिक्टली हमने आदेश दिए हैं उनको कि किसी भी पार्टी से बालातर होकर के एक्शन लिया जाए। और ये जरूरी है, इस हालात में इस वक्त की जरूरत है। कराची जो 18 मिलियन की पॉपुलेशन जो का शहर है, उसमें अमन जरूर होना चाहिए। अमन के बगैर मेरे ख्याल में हालात ठीक ठाक नहीं होंगे। और मेरी गवर्नमेंट की, और मैं तो कोalition वालों जो थे हमारे साथ रिकंसिलेशन के तहत हैं भी, नहीं भी हैं, और सिटीजन को भी अपील करूंगा कि इसमें मुझसे तावन करें ताकि मैं अच्छा रिजल्ट दे सकूं कराची की आवाज़। मंजूर वसान साहब, कुछ लोग चाहते हैं कि आप नाकाम हो जाएं। मुझे खाली ये बताइए किस किस्म का ताउन आपको चाहिए। एक तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए, जब सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं और हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ होती है और करना चाहते हैं, तो वो अपने साथ कैमरे लेके नहीं फिरते जगह जगह, क्योंकि देखिए जब टिकट्स चलते हैं कि आप कटी पहाड़ी पहुंच गए, आप कस्बा कॉलोनी पहुंच गए, आप रंगी पहुंच गए, आप लियारी पहुंच गए, तो लोग तो फरार हो जाते हैं। तो ये किस किस्म का ऑपरेशन है? जबकि स्ट्रेटेजिक जगहों पे हमले किए जाते हैं या वहां ऑपरेशन किया जाता है तो मीडिया ब्लैकआउट कर दिया जाता है। देखिए, मुझे आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि ऑपरेशन से पहले मैं
कहाँ स्टिकर चलाऊं या किसी उस इलाके में पहले कैमरास के थ्रू पहुंचूं। ठीक है, तो बाद में जाता हूं। कट्टी पहाड़ी भी बाद में गया जब हमने कंट्रोल नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं वैसे एक दूसरे पैमाने पे बात करती। आपने इस वक्त रेंजर्स को किस किस्म के इख्तियारात दिए हुए हैं? रेंजर्स को हमने पुलिस के इख्तियार दिए हैं, कहाँ भी जा सकते हैं, रेड कर सकते हैं और ऐसे अनासर को पकड़ सकते हैं। कोई नामी ग्रामी लोग पकड़े हैं आपने जिसके तहत आपके कोलिशन पार्टनर्स रूठे हुए वापस आ सके? नामी ग्रामी तो हमने बहुत से पकड़े हैं और वो तो मेरे ख्याल में वक्त पे बताए भी जाएंगे, और लेकिन लोगों को पता भी है। मीडिया के सामने लाएंगे उनको? बिल्कुल लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिंध के होम मिनिस्टर मंजूर वसान साहब के मीडिया के सामने लाएंगे। नाज़रीन, हमारे साथ ब्रिगेडियर वसीम अयूब साहब कमांडर हैं सचल रेंजर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे कुछ तफसीलात लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं खाली आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि बारहा ये कहा जाता है कि जी रेंजर्स को हमने इख्तियारात दे दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखने में नहीं आता अमलन तौर पर। और मैं ये नहीं कह रही कि इट्स बिकॉज कि आप लोगों की विल नहीं है, बट शायद कि वो नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसकी वजह से शूट ऑन साइट या रेंजर्स मौके पर वारदात करते हुए नजर नहीं आते। हाउ सीरियस आर यू दिस टाइम? और उसके साथ साथ आपको क्या पूरे इख्तियारात दे दिए गए हैं कि अगर किसी इलाके में फायरिंग हो रही है, कोई दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं, तो यू विल बी एबल टू कैप्चर देम? जी, ऐसे है कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ जो आपने कहा कि जी के विल का, एज फार एज द विल इज कंसर्न, विल was already there and it is there and it will remain as such because this is a very disciplined force and we are committed to our job। और उसमें डेफिनेटली यहाँ पे जो कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करने की जो जिम्मेदारी हमें दी गई है वो हम जरूर इसको जो है पूरी खुशउस्लूबी से हम कोशिश करेंगे इसको निभाने की। यहाँ पे एक बात मैं पहले थोड़ा वाज़ेह करता जाऊँ कि प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट की जो जिम्मेदारी है ये प्राइमरीली पुलिस की जिम्मेदारी है। एज फार एज वी पीपल आर कंसर्न्ड, वी आर इन सपोर्ट ऑफ द पुलिस। हाउएवर, यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूं कि ये आज जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है इसके मुताबिक हमें पुलिस ऑफिसर्स की जो है वो पावर्स भी दी गई हैं, सर्च करने की भी जो पावर्स दी गई हैं। उसके अलावा इफ समवन शूट्स एट अस और समवन इज कंसिडर्ड कि जी कि उसकी कोई इंटेंशन भी थी अगर इस किस्म की, तो वी कैन नॉट ओनली शूट एट हिम बट ऑल्सो उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से बगैर वारंट के जगहों का जो है सर्च जो है वो भी की जा सकती है।